all the future assistants professor. Welcome back to the English by Pooja Singh. Today is day 6 and today we are going to talk about the poet who turned love into logics, who turned heartbreaks into holy metaphors. And you know what? He could compare a flea bite to marriages. Just think about that. कि एक मच्छर के काटने से एक मच्छर अगर मेरे को काट लिया और मेरे हस्बैंड को काट लिया and we turned into husbands and wives. So he can take that a flea bite to a marriage. He could scold like like a lover to son. मतलब आप you just think कि you are being a lover and somebody is scolding you like that. और वो भी normal person को नहीं. He is just talking to the heavenly bodies, to sun. Just imagine who we are talking about. And the most important thing, he could also talk the most saddest thing into a joke. Like when we talk about death, it comes with sorrow, it comes with tears, but that person, that poet could turn tears, could turn death into joke. Yes, we are talking about John Donne, the fearless father of metaphysical poetry. And it gives me when I was in my graduation, and when we read about the flea, oh my god, the professors explained it so nicely. And the sun rising, there was a professor of mine, I would like to take his name with due respect. It was Mr. Tripathi sir, and he has just evoked the essence of English literature in ours. And it was awesome to attend his lecture. So yes, when I say that you should not read literature just because of passing an examination, but you should feel that essence. So yes, we are going to talk about John Donne, about his wit, about his wild imagery, and why UGC can't stop asking about him. We are going to talk about all of it. So without delay, let's get started. And yes, I also wanted to mention you one thing. It's been a day since I haven't posted a video of this series. Why? Because there was some technical issues. A lot of things were there, so I could not make a video because of Wi-Fi connections, and there was no light at my home, as I told you on the live. Here transformer was gone, उड़ गया था transformer, so that is why I could not. So please don't give up that easily. How can you give up कि ma'am will not make a video like that? No, I will. When I have committed something, I stay consistent. I will be there. It's a 6-month journey. How can you think of that I will be backing off? अगर किसी दिन video post नहीं हो रहा ना, just think that ma'am is having some or other problem. Otherwise she would be like, अगर हम रात में 12-1 बजे 2 बजे तक वीडियो बना के सुबह में पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो आई केयर अबाउट यू एंड आई नो व्हाट कमिटमेंट मीन्स. सो प्लीज डोंट गिव अप दैट इजली. अगर आप जिस दिन वीडियो नहीं मिल रहा है, व्हाट यू डू, यू मेक द रिविजन. जब अभी तक जितना भी क्लासेस आपने लिया, वो मेक रिविजन फॉर दैट एंड डोंट गिव अप दैट इजली. आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप. Okay, so without any delay, let's get started. So let's get started. Today is day 6 of our cracking UGC at JRF. So in the very first thing, we'll be discussing about the Caroline age. We have already talked about the Jacobean period. Now what happens here, the Caroline age goes from 1625 to 1649. This is a time period so that you will understand. जेकोबियन एज में किंग कौन थे? किंग जेम्स फर्स्ट. नाउ यहाँ पर अब कैरोलिन एज के बारे में बात होता है, तो हियर वी आर हैविंग किंग चार्ल्स वन. सो किंग चार्ल्स वन के बारे में इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट, सो ये क्या हो गए थे, ये भी प्रोटेस्टेंट किंग बन चुके थे. ठीक है, प्रोटेस्टेंट किंग बन चुके थे. ही ऑल्सो डिड नॉट लाइक द कैथोलिक्स, बट इन कॉन्ट्ररी व्हाट ही डिड, ही मैरिड टू अ कैथोलिक प्रिंसेस ऑफ कहाँ की? फ्रांस की. अरे भैया ये क्या बात हुई? इफ यू वांट टू स्टे प्रोटेस्टेंट, बी प्रोटेस्टेंट. व्हाई यू आर मैरिंग टू अ कैथोलिक? हाँ, प्रिंसेस की, फ्रांस की. सो पहले तो हो गया, तो इससे बहुत लोग सब नाराज हो गए. किंग चार्ल्स से सब लोग नाराज हो गए. ठीक है, दे गॉट एंग्री, पीपल गॉट एंग्री, प्रजा वॉज गॉट एंग्री. तो ये क्या क्या मिस्टेक किया था, विल टॉकिंग अबाउट द मिस्टेक्स. व्हाट डिड द चार्ल्स किंग वन मिस्टेक. सबसे पहले तो कैथोलिक प्रिंसेस से शादी कर लिया था, तो आई एम जस्ट राइटिंग मैरिज. ठीक है, ही डिड मैरिज टू द कैथोलिक प्रिंसेस. उसके बाद से व्हाट डिड ही स्टार्टेड, ही स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग द इंग्लिश प्रोटेस्टेंट्स. ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया मारने को. ठीक है, दिस इज वेरी बैड ऑफ हिम. उसके बाद व्हाट डिड ही डू, ही स्टार्टेड अ चैम्बर, स्टार चैम्बर. स्टार चैम्बर बोलकर स्टार्ट किया है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या करता है, ये इसमें खाली अपर क्लास के, जो अपर क्लास के पीपल होंगे वो आएंगे,
और जो नहीं आते थे उसको हेवी फाइन लगा देता था कि भाई तुम नहीं आ रहे हो, कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या करता था, ब्राइब्ड टू नोबल पीपल फॉर बाइंग टाइटल्स। अगर आपको राजा महाराजा बहुत सारे पद होते हैं ना, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, फलाना ढिमकाना, दिस ऑल दैट, तो अगर आपको टाइटल चाहिए तो भाई खरीद लीजिए पैसा देकर। So that what it all made it happen, that if you want to get a title you have to buy. So that started getting angry all the people कि क्यों भाई आप ऐसे कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो, if you are denying for that you have to pay a heavy fine, ठीक है। Then also he started with playing with the treasury of England, जो भी पैसा रखा हुआ था उससे खिलवाड़ करने लगा, ठीक है। उसके बाद अपने मन से कुछ भी लॉज पास करवा देता था। उसके बाद फिर क्या बोला कि अगर आपको कुछ भी चाहिए, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट, he refused to let the parliament over a decade, he did not talk to anyone, and it was like 11 साल तक, for the 11 years of tyranny, or you can say the Charles personal rules till 1640, he did that, he did not let. and इसी में क्या होता है जब यू जस्ट थिंक, फिर क्या हुआ कि इतने लोगों को जब आप इतने सारे रीजंस दे रहे हो गुस्साने के लिए, सो दे स्टार्टेड, ऑल द पीपल स्टार्टेड मार्चिंग अगेंस्ट चार्ल्स फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड अ वॉर। व्हाई? अब बोला कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आई विल, उन लोगों के पास दो रीजन था। पहला रीजन था कि वी वांट टू किल योर चीफ एडवाइजर एंड चार्ल्स वन शुड नॉट टू इम्पोज एनी टैक्स। लेकिन नहीं भाई, हम तो टैक्स इम्पोज करेंगे, हम तो पैसा लेंगे, एंड विल डू ऑल शिट ऑफ नॉनसेंस। पीपल गॉट एंग्री एंड दे स्टार्टेड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। So that is why a fight against Charles was started. Now, as of now, you should be knowing these all things. After that, when we will be starting Commonwealth period, we'll be discussing in a detail with it. ठीक है? As of now, ये आपको पता हो गया, ठीक है? So, कैरोलिन एज का अगर स्टार्टिंग होगा तो दिस इज अ टाइमलाइन, और ये मोनार्क किंग थे, लोग बहुत इनसे एंग्री थे, एंड इट एंड्स विद द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन एंड इंग्लिश सिविल वॉर. सो इसमें क्यों टेंशन हो गया था, यहाँ पे जो आपको रीजन बताया है उससे आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, नाउ अभी आप ये पढ़ लीजिए. एज ऑफ टेंशन बोला जाता था, क्यों? क्योंकि रॉयलिस्ट और पार्लियामेंट्रियंस के बीच में टेंशन हो गया था. पार्लियामेंट्स अपना रूल्स बनाती थी और रॉयलिस्ट मतलब चार्ल्स किंग, जो किंग होते हैं वो रॉयलिस्ट में आते थे. तो इनके बीच में एक टेंशन हो गया था. ठीक है, कोर्टली, इसको अंडरलाइन करते हैं, कोर्टली पोएट्री, व्हाई इट इज नॉट अंडरलाइनिंग, फ्लरिश्ड स्पेशली चार्ल्स कैवेलियर. अब इसमें एक है कि कोर्टली पोएट्री, उसमें बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड हुआ. ठीक है, मतलब जो सिर्फ किंग के प्रेजेस के बारे में बात की, तो उसमें कौन कौन से पोएट थे? रॉबर्ट हेरिक, रिचार्ड लवलेस एंड थॉमस क्रियू. ड्रामा डिक्लाइन ड्यू टू राइजिंग ऑफ पुरिटनिज्म. व्हाट डज पुरिटनिज्म मीन्स? जब खाली आप सेक्रेड बात कर रहे होते हो, आपको हर कुछ इमोरल लग रहा होता है, गाना नहीं, म्यूजिक नहीं. विल टॉक अ डिटेल अबाउट इट. ठीक है, एंड वी कुड ऑल्सो सी द डीप इन्फ्लुएंस ऑन द रिलीजन, लॉयलिटी एंड मेलांकोली. नाउ दिस हैज बिन, ये आपको याद रखना है, कोर्टली पोएट्री इंक्रीज हुआ इसमें और ड्रामा डिक्लाइंड हुआ. ड्रामा इसमें डिक्लाइंड हो गया. यहाँ पे ड्रामा बहुत आप नीचे देखोगे, और यहाँ पे जो कोर्टली पोएट्री है वो राइज होता है. उसको ग्रीन से कर देते हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, कोर्टली पोएट्री राइज हुआ और ये डिक्लाइन हुआ. ठीक है, नाउ जॉन डन वाज एक्टिव थ्रू लेट एलिजाबेथन एंड जैकोबिन एंड इट वाज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड पोएट्स ऑफ दिस एज. ठीक है, तो अब पीवाईक्यू क्वेश्चन कोई भी आएगा कि कैरोलिन एज हम कौन से किंग को रेफर करते हैं, उसमें किंग जेम्स भी आएगा. तो मेक श्योर जब आप 1625 और 1649 एज देखें तो आप किंग चार्ल्स फर्स्ट को करें. ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट माय फेवरेट पोएट जॉन डन. इज माय फेवरेट. When I was in graduation, I literally, was so much in love with him. The way he writes. I am in love with John Donne's work. Okay? When you will read, you will also fall in love. Okay? So let's get started. सबसे पहले what you have to know. He was born in 1572.
London, and he died in 1631. So when you will consider this age, so अगर chronology का कोई work आता है, you would be able to know this thing. Initially he wrote love poetries and later turned to the religious poetry. ठीक है, I'll also tell you the reason why did he turn into the love poetries and to the religious. Let's deal with the red so that it shows love. ठीक है, नहीं पहले ही अच्छा लग रहा था. ठीक है. He was leading figure of metaphysical poetry. We'll talk a lot of metaphysical poetry, why it was called metaphysical poetry. See, now I will tell you what metaphysical poetry means. So, John Donne was a celebrated metaphysical poet. ठीक है, he was a most celebrated metaphysical poet. Why? Because जब metaphysical के बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, the very first thing that you should be knowing, it is the simplest form. It is the simplest form that refers to something that exists beyond. ठीक है, it exists beyond the physical means or the material world means जब आप reality को क्वेश्चन कर रहे हो बट आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, you don't have anything to prove it. Like when you are dealing with the abstract concept of reality, existence of God, knowledge. How can you prove these all things? There are no certain things that you can prove, right? So it is like metaphysical delves into concepts that are not directly possible by our senses. हमें नहीं समझ में आता कि हमें कैसे इसको प्रूव करना है. Like nature of consciousness, जैसे हमें कभी कभी गट्स आता है, मतलब अंदर से इंस्टीट्यूशन आता है कि नहीं आज हमें ये काम नहीं करना चाहिए, आज ये गलत. टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माइन एंड दिस इज नॉट फेक स्टोरी. अगर आप कहोगे तो आई विल शो यू द वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो. आज मॉर्निंग में आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, सो आई थॉट दैट हम मेरा माई रूटीन इज दैट आई ऑलवेज वेक अप इन द मॉर्निंग, आई डू वर्शिप टू गॉड नो मैटर वॉट. ठीक है, नो मैटर वॉट. बट आई डोंट नो वाई टुडे आई फेल्ट कि नहीं आज हमको पूजा करने का मन नहीं कर रहा है, आज मेरे को पूजा नहीं करना, आज मेरे को मन नहीं कर रहा है. आई विल नॉट डू, आई विल जस्ट मन में आई विल चैंट सम मंत्रस एंड टुडे आई विल मेक अ वीडियो क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग. एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया. तो आज बिकॉज दिस इज ऑल्सो माई वर्शिप. टीचिंग यू इज ऑल्सो माई वर्शिप. Because there is the one saint which I follow him. He says कि it is not that you are chanting God, you are worshipping God, you are doing means अपना काम छोड़ के you are doing things. If you are benefiting people, if you are benefiting your students, that's called adhyatam. ठीक है, that's called adhyatam. And if you are making your students teach, see your worship in that. तो I said कि today I made this one. ठीक है, कि हाँ चलो ये है. And आज जैसे मॉर्निंग में उठे ना, I did not felt good कि I should not पूजा नहीं करना चाहिए, आज मेरा मन नहीं हो रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है. टुडे आई विल बी मेकिंग माई स्टूडेंट्स टीच एंड यू विल नॉट बिलीव, आई हैव माई पूजा रूम देयर. और हम अपने गार्डन से आ रहे थे एंड आई सॉ अ स्नेक वाज मूविंग इनटू माई पूजा रूम. और मेरा क्या होता है, मेरा मॉर्निंग का ये रिचुअल है कि हम पूजा रूम में जाते हैं और यहाँ पे कर्टन्स लगा हुआ है, 2 डोर है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, और कर्टन्स लगा हुआ रहता है. सो आई मेक ऑल द जो भी भगवान का बर्तन वगैरह होता है तो उसको क्लीन करके आई सिट हियर एंड जनरली पर्दा लगा हुआ होता है और द स्नेक वेंट फ्रॉम हियर. सो आज इसी को बोला जाता है इंट्यूशंस. इसी को बोला जाता है कॉन्शियसनेस, और इसी को बोला जाता है मेटाफिजिकल स्टेट, दैट समथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड. आई डोंट नो कि वो फीलिंग मेरे अंदर कहाँ से आया, बट टुडे आई डिड नॉट फेल्ट एंड आई सॉ. बट तो हम गार्डन से वापस आ रहे थे तो आई वॉज स्टैंडिंग हियर, सो आई सॉ कि आज यहाँ से घुस रहा है. एंड देन एट द मोमेंट आई रियलाइज कि देखो आज, एंड टुडे ये आज का ही स्टोरी है. आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब ब्लॉग वाला चैनल पर. ठीक है, देन आई कॉल्ड माई नेफ्यू कि हाँ भाई आओ देखो इसको कैसे. तो फिर उसको निकाल कर एक क्या बोलते हैं, एक बैग में करके उसको उसको हमारे घर के बगल में एक रिवर है, उस रिवर में छोड़ दिया. एंड वो स्विमिंग, हम बोले चलो भाई अच्छा है, उसको हम लोग मारा नहीं. एंड ही गॉट इनटू अ बैग. सो ये है मेटाफिजिकल पोइट्री, जिस सिंपलेस्ट फॉर्म आप जहाँ पे आप नहीं समझ सकते कि नेचर का टाइमिंग क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ टाइम, what is the how you, और यही है. और what is the existence of God, this is the existence of God, that God made me realize कि हाँ पूजा you don't do आज worship today. Why? Because it might hurt you. Had I been doing cleaning my भगवान का बर्तन, he might have, I would have standing here.
वो स्नेक आता मेरे को यहाँ पे काट लेता. So anything can happen anytime. So this is the thing, and this is why I believe in God, and that is why I always tell you कि please trust your gut, trust your consciousness, trust your intuition. This is the, you know, these are the things that you cannot, nobody can explain, nobody can tell you things. So here John Donne was talking about all it, and this is my personal story. People will say कि people can say a lot of things. 4 लोग 40 बातें, ठीक है. तो दोज हु आर माई वेल विशर्स, शायद हम आज उनकी वजह से बच गए, और जो भगवान थे मेरे साथ में, सो दोज हु आर माई वेल विशर्स, दे, आज उनकी वजह से हम बच गए. और वो जो मेरे भगवान है, वो जो मेरे गॉड है, दैट मेड मी रियलाइज कि हाँ, आपको इंस्टीट्यूशंस आता है, एंड यू, दिस इज समथिंग दैट मेटाफिजिकल पोएट्स डिड. दे बिलीव, दे अंडरस्टूड कि क्या होता है. और आपको एक और बात बता देते हैं, एंड अगेन पीपल विल से कि सिंपैथी गेन एंड ऑल दैट. प्लीज, आई हैव नथिंग टू डू विद सिंपैथी गेन, और मेरे पास बहुत सारे अदर वर्क भी हैं इस पे, बट इतना कोई कहानी नहीं बना सकता, ठीक है. दिस इज नॉट फेक स्टोरी, ठीक है. दोज हु वांट्स टू बिलीव दे कैन बिलीव, जिसको नहीं मानना है तो फिर मत मानिए आपको, ठीक है. उसके बाद आई टेल यू कि वो जो PYQ आया था ना इस बार आपका 2025 में जून में, ऑन्टोलॉजी, ये भी मेटाफिजिकल का है. 27 जून, ये भी मेटाफिजिकल टॉपिक्स का है. द स्टडी ऑफ बीइंग एंड एग्जिस्टेंस. तो आप नहीं कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है. हम भी कह रहे थे कि अरे आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया, बट व्हाट आई सेड कि इट वाज लेंथी एंड इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, एंड अगेन द लेसर नोन वर्क्स वर आस्क्ड एंड द नॉट फेमस पोएट्स वर आस्क्ड और वर्क्स वर आस्क्ड, ठीक है. तो ये होता है जब व्हेन आई स्टडीड डीप, आपको पढ़ाने के लिए आई ऑल्सो स्टडी डीप, देन आई अंडरस्टूड कि अच्छा ये तो मेटाफिजिकल पोइट्री का टर्म है. सो दिस इज हाउ UGC आर गोइंग इन डेप्थ, ठीक है. सो लेट्स बिगिन आवर पोएम्स. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम, फ्ली के बारे में मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, इफ यू हैव सीन इट. सो द वेरी फर्स्ट पोएम विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्ली, ठीक है. फ्ली क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, ठीक है. और ये 1633 में पोस्टम्यूसली पब्लिश हुआ. व्हाट डज पोस्टम्यूसली मीन्स? ये होता है जब कोई राइटर या पोएट मर जाता है, उसके बाद उसके वर्क को पब्लिश किया जाता है, ठीक है. एंड यस ऑल्सो आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड, ये तो रह ही गया था, इसको भी थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है. उसके बाद भी तो दैट आपको पूरा समझ में आ जाएगा. सॉरी, मेटाफिजिकल पोएट्री वो तो समझा दिया आपको, बस एक वर्ड कितने सारे स्टोरीज और कितने सारे लाइफ मेमोरीज को रिलेट कर सकता है, ठीक है. सो मेटाफिजिकली पोएट्री किस चीज के लिए जाना जाता था? It was known for its wit and paradoxes. Wit का मतलब क्या होता है? The ability to use words in a clever और अम्यूजिंग वे, ठीक है. और पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जब कोई 2 स्टेटमेंट या सिचुएशन होता है जो कि स्ट्रेंज सीम करे या फिर इम्पॉसिबल हो जाए. लाइक इसके बाद इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं पैराडॉक्स का. लाइक आई शट माई आईज so that I can see. Is it possible? क्या हम अपने आंख को बंद कर रहे हैं so that I can see? तो ये ह्यूमनली पॉसिबल तो नहीं है, बट हाँ, ये हम लोग कैसे करते हैं. तो ये स्ट्रेंज हो रहा है ना कि हमको देखने के लिए अपने आंख बंद करना पड़ रहा है, ठीक है. एक और एग्जांपल है, आई ऑलवेज लाई. इज इट पॉसिबल? इफ आई से आई ऑलवेज लाई, इट मीन्स आई माइट बी लाइंग नाउ ऑल्सो. हो सके अभी हम सच बोल रहे हैं, फिर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज पैराडॉक्सेस. अनयूजुअली इमेजरी होगा, दैट मीन्स कंसीट, और ब्लेंडिंग ऑफ इंटेलेक्ट प्लस इमोशन, दैट वाज इट. सो अगर PYQ के बारे में मेटाफिजिकल कहीं भी वर्ड आए, दैट मीन्स जॉन डन, ब्रेन प्लस पैशन. सो और इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अभी ये फ्ली के बारे में, ठीक है. और ऑल्सो जैसे जैसे हम लोग मूव करते हैं ना, वो याद आते रहता है. मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कार्पीडियम, ठीक है. व्हाट डज दिस मीन? ये बहुत फेमस हुआ है. मेटाफिजिकल का मीन्स कॉमन थीम. अगर आप पूरे पोएम्स में भी देखोगे ना, जब हम लोग मेटाफिजिकल के बारे में पूरा बात करेंगे, तो कार्पीडियम इज द मोस्ट कॉमन थिंग. व्हाट डज दिस मीन्स? लिव लाइफ टू दी फुलेस्ट. आप लोग बहुत लोगों के बारे में, अभी विराट कोहली भी अपने क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम के बायो में ये लगाए हैं कार्पीडियम.
उसका मतलब ये होता है लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। और ये कहाँ से आया? मेटाफिजिकल पोइट्री से आया है, और रिलीजियस थीम भी इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थीम है। कार्पे डिएम का मतलब होता है कि जो भी जिंदगी आप जी रहे हैं, मेक इट टू द फुलेस्ट, ठीक है, मेक इट टू द फुलेस्ट। सो यस, नाउ इट इज डन, हम पूरा बता दिए हैं, अभी कुछ छूट नहीं रहा है, ठीक है। जॉन डन, कार्पे डिएम, मेटाफिजिकल पोइट्री का ये कॉमन थीम है, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू फ्ली। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। सो जब हम फ्ली के बारे में बात कर रहे हैं तो एक शॉर्ट्स में हम डाले हैं फ्ली के बारे में, नहीं फ्ली के बारे में नहीं, द सन राइजिंग के बारे में डाले, सॉरी। सो फ्ली क्या होता है? इसमें टाइटल तो कंसीट है, अनयूजुअल है भाई, इंसेक्ट का कौन सा कोई बनाता है भाई पोएम। सो इसमें जो पोएट है वो मोनोलॉग कर रहा है, मीन्स मोनोलॉग मीन्स अपने से बात कर रहा है। What does he say? Opening lines are very important. Make sure you do write in this your copy if you are making notes. Please copy में आप notes बना लीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो जब आप ये वीडियो देख ले, मेक श्योर यू गो एंड विजिट टू सी द कंप्लीट पोएम। आप पूरा पोएम पढ़िएगा खुद से, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 9 लाइन का पोएम है, ठीक है। आई विल रिसाइट फॉर यू नाउ। The opening lines are, mark but this flea, and mark in this how little that which thou deniest me is, ठीक है। उसके बाद बोलता है, It sucked me first and now sucks thee, and in this flea of two bloods mingled be। बोलते हैं कि भाई पहले तो ये अपनी मिस्ट्रेस से बात कर रहा होता है, मतलब अकेले में मिस्ट्रेस से बोल रहा होता है कि देखो, एक तुम हो, एक हम हैं, और ये मच्छर है, ठीक है। ये पहले तुम्हारा ब्लड सक किया, उसके बाद मेरा ब्लड सक किया। नाउ व्हाई ही सेइंग फीमेल लवर, इट इज एन एक्सटेंडेड मेटाफर, रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है। ये रिलेशनशिप शो कर रहा है कि पहले ही तुम्हारा ब्लड मिंगल किया, फिर मेरा ब्लड मिंगल किया। नाउ व्हेन दिस इंसेक्ट हैज सक्ड बोथ ऑफ द ब्लड, नाउ दिस ब्लड हैज बीन मिंगल्ड, ठीक है। और ये मोस्ट होता है कि जब हम किसी से इंटीमेट हो रहे होते हैं, अगर सेक्सुअल को भी मिंगल में इनोशंस हो रहा होता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि फ्ली का एक्सेंस तो बहुत इनोसेंट था, मतलब वो तो आपको कुछ हार्म नहीं पहुंचाया, ये मिस्ट्रेस है और ये जॉन डन है, ठीक है। तो बोलते हैं आपको तो कुछ ये हार्म नहीं पहुंचाया, ये तो बहुत इनोसेंट है, बट इसके इनोसेंस में क्या हो गया कि हम लोग सेक्सुअली इन्वॉल्व हो गए, तो ये अनयूजुअल है, एंड दैट व्हाट वी से कंसीट। इज इट पॉसिबल? ही इज जस्ट कंपेयरिंग कि एक इंसेक्ट के काटने से हाउ कम दीज टू पीपल गॉट सेक्सुअली मिंगल्ड, नहीं। तो ही सेज कि ये बहुत सिंबॉलिक है फ्ली से। ही सेज that and in this flea of two bloods mingled a sin or no shame or no loss of maidenhead। he said कि आप अपनी virginity lose नहीं कर रहे हो, this was very small act of doing this, yet this enjoys before it woo, yes it enjoyed before it woo, and pampered swells with one blood made of two, and this allows more than we do। तो वही बोलता है कि this symbolic is to flee, and that flea is a sacred place of temple। और उसके बाद ये लास्ट में जो इनकी मिस्ट्रेस रहती हैं वो मार देती हैं, तो ये याद रखिएगा, वो जो लेडी रहती है इनकी मिस्ट्रेस, शी किल्ड दैट फ्ली। तो वही वो बोल रहा है कि इस फ्ली को मारने में आपको क्या ही लगा, तो बहुत इनोसेंट था, और वो मतलब नेग्लिजिबल था मारना, एक मच्छर को मारना इज नेग्लिजिबल। तो ही सेज कि वो मच्छर को आपने मारा नेग्लिजिबल, अगर हम लोग मतलब अगर खुद साथ में हो जाए, हम लोग यूनियन अब कर ले, मतलब दैट जॉन डन वांट्स हिज मिस्ट्रेस टू बी सेक्सुअली इन्वॉल्व विथ हिम, एंड दैट इज व्हाई ही से कि लेट्स बीइंग टुगेदर, कि जैसे हमारा ब्लड तो मिंगल हो ही गया है, और ये मच्छर को मारने से जितना आपका नेग्लिजिबल हुआ, आपका वर्जिनिटी भी लॉस नहीं होगा। सो दिस इज वन ऑफ द इट टॉक्स अबाउट दैट फ्ली बाइट, एक फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात हुआ है, एंड ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज बिलीवर दैट यर यूनियन जब भी आता है दैट मीन्स सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, या फिर आपको कम्यूनियन करना, टू बी इंटीमेट। सो ये लिटरेचर में दीज वर्ड्स आर यूज्ड, एंड देर ऑलरेडी मिक्सड इनसाइड द फ्ली। बोलते हैं कि हमारा ब्लड तो मिक्सड हो ही चुका है इंसेक्ट में। सो यस, अगर थीम के बारे में आपसे पूछे तो इट इज ऑल अबाउट सेडक्शन, फिजिकल डिजायर एंड वीट। And PYQ is, which poem compares physical union intimacy to a flea beat? So it is from the flea, ठीक है। So this is it for the flea. Now we will be moving to the next important poem, the Sun Rising. सो येस, आई हैव मेड अ शॉर्ट ऑफ इट, सन राइजिंग के बारे में, और यहाँ पे तो स्पेलिंग इसका गलत लिख दिए हैं हम, इसका स्पेलिंग इसीलिए यहाँ पे गलत लिखे हैं ताकि आपको समझा सके कि ये सन राइजिंग, ये सन नहीं होगा, इसमें होता है SUNNE, एंड दैट्स ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें ओपनिंग लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर यू लर्न दिस, एंड दिस हैज बीन पब्लिश्ड अगेन पोस्टुमसली इन 1623, ठीक है।
और ये पोएम लिखा गया है रिटोरिकल में, ठीक है, रिटोरिकल में. What does this means? Rhetorical means asking questions and you don't demand any answer. आप इसका आंसर के लिए मतलब you are, अब जैसे इसमें सन राइजिंग है तो इसमें जो जॉन डन होते हैं वो सन से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, एंड ऑब्वियसली सन तो इनको आंसर देने से रहे, ऑब्वियसली तो सही बात है ना, सन तो इनको आंसर देंगे नहीं. चलो सन से है ना, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको येलो से कर देते हैं, ठीक है. सो सन तो येलो कलर कैसा आ गया? Please let me choose the yellow color. Where is yellow color? Yellow color is not coming. ठीक है, इसी से बताते हैं, ठीक है. So this is sun. ठीक है, sun. He is so happy. नहीं, थोड़ा evil बन गया ना सन, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं. I like emojis. I like emojis a lot. ठीक है, ठीक है. He's so happy. ठीक है, तो सन रूलिंग के बारे में बात हो रहा होता है. सो ही सेज, जॉन डन बोलते हैं, बिजी ओल्ड फूल, अनरूली सन. व्हाट डज अनरूली मीन्स? अनरूली का मतलब होता है इल मैनर्ड, ठीक है, इल मैनर्ड. Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? Means why you are peeping inside me? भाई आप मेरे घर के अंदर क्यों झांक रहे हैं? She is all states and all princes, I nothing else is. बोलते हैं आपको कुछ नहीं मिल रहा है. Son, you have to shine nor my bed in center of universe and walls are at the edge of universe. He says कि आपको जाना चाहिए और आपको जो बच्चे हैं उनको पास जाइए, आप बच्चों जो स्कूल जा रहे हैं उनके पास जाइए, जो लेट हो रहे हैं, जो हार्वेस्ट ऑफिसेज है उनके पास जाइए, ठीक है. या प्लीज गो एंड रीड द होल पोएम, यू विल फाइंड इट सो नाइस. आपको समझ में आएगा, अभी हम समझा दिए ना, अब आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से. आपको समझ नहीं आ रहा, द आवर्स बीत रहा है, मंथ्स बीत रहा है, और आपको फिर भी मेरे ही रूम में झांकना है, मतलब लिटरली. हाँ बताइए, इतने सारे ड्यूटीज है, इतना सारा आप बीज के बारे में सोचिए, मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं भाई? आपको वर्ल्ड को वार्म करना है, लेकिन आप मेरे ही जो बेड है, हम लोग सोए हुए हैं नेकेड, एंड व्हाई यू आर पीपिंग इनसाइड माय रूम? हाँ बोलिए. सो दिस इज हाउ जॉन डन सेज अ लॉट अबाउट. बहुत क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इसका सेटिंग्स ये है. So the speaker is John Donne, scolds the son for interrupting him and his lover, and claims that love transcends time and season, treats their bedroom as the center of the universe, and metaphysical concept का बहुत यूज हुआ है, because compare को बोल रहा है you are all the world's riches, the kings, the empires, the everything. तो ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझा दिया मैंने. Love's power over time, टाइम के ऊपर लव है. रोमांटिक डेफियांस एंड प्राइवेट वर्ल्ड वर्सेस पब्लिक ड्यूटी. ही सेइंग कि आपका बहुत सारा पब्लिक ड्यूटीज है, आप वो कीजिए, मेरे रूम के अंदर प्लीज पीप मत कीजिए. So which done poem opens by calling sun a busy fool or roll. It is the sun rising, and sun is rising, but love does not care about the morning or about the alarms. So he's saying कि please Mr. Sun, आप प्लीज मेरे बेडरूम में पीप मत कीजिए, ना ही विंडो से और ना ही कर्टन से, ठीक है. So this was all about the sun rising. I'll make the second part, or shall I explain it now only? Because फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना. चलो इसी में एक्सप्लेन कर देते हैं, नहीं तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो, ठीक है. I'll explain in this. सारे पोएम्स तो मेरे को बहुत अच्छे लगे जॉन डन के, बट ये थोड़ा देख के मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था. और क्यों गुस्सा आ गया था ये आपको भी पता चलेगा. ऑल फेमिनिस्ट कैन कनेक्ट विद मी. और अगेन यहाँ पे स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, यहाँ पे गो लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है, इसका रियल स्पेलिंग इज गो, एंड कैच का स्पेलिंग होता है CACHE, कैची, ठीक है. सो ये है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विथ अ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, ठीक है. स्पेलिंग बता देते हैं, ये बहुत मिसोजिनिस्टिक टाइप का है, बिकॉज इट क्रिटिसाइज द वुमेन सपोजली इनविटेबल इनफिडिलिटी. व्हाट डज दैट मीन्स? और ये भी बता देते हैं कि ये लिरिकल में लिखा हुआ है. इसका मतलब ये है ना कि सिंपल लाइन में आपको बताते हैं. मिस्टर जॉन डन ये बोलते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ वुमेन दैट
can be either a beautiful or faithful. वो बोलते हैं कि ये impossible है. Let me change the color. ये impossible है for a woman to be either beautiful or faithful. It's impossible to a woman to be both. या तो वो सुंदर ही हो सकती है या फिर वो फेथफुल हो सकती है. तो ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए. सो अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो यू कुड कनेक्ट. ये बहुत ज्यादा एंटी फेमिनिस्ट टाइप का पोएम है. तो ये फीमेल के इनकॉन्स्टेंसी के बारे में बात करता है. स्पीकर लिस्ट अबाउट इम्पॉसिबल टास्क लाइक फाइंडिंग अ फेथफुल वुमेन. बहुत ज्यादा सरकाजम और इमेजरी का यूज किया गया है. अगर आप पोएम जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. वो बोलते हैं कि और ये जो इम्पॉसिबल टास्क के बारे में बात किया, इसमें ये क्या क्या बोलते हैं. ये बोलते हैं कि एक काम करो, अगर आप इम्पॉसिबल टास्क को कंप्लीट कर दोगे ना, मतलब ये इम्पॉसिबल है फाइंडिंग अ फेथफुल और क्या क्या इम्पॉसिबल टास्क है उसमें से ये भी एक ये एड ऑन कर दिए हैं. बोलते हैं कि जाके आप फॉलिंग स्टार को पकड़िए. क्या इज इट पॉसिबल टू कैच अ फॉलिंग स्टार या फिर मीटियोर? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. फिर बोलते हैं कि मैंड्रेक रूट, जो टू इम्प्रिग्नेट अ मैंड्रेक रूट, ठीक है, इसका मतलब ये होता है. इसका इमेज कैसे, आप मैंड्रेक रूट सर्च कीजिएगा ना तो आपको दिखेगा. सो मैंड्रेक रूट ही होता है, जैसे आप कैरेट या फिर रेडिश का देखे होंगे ना, ऐसे करके रूट्स होता है. तो यहाँ पे ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे करके ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे रूट्स. आप वो इमेज पे सर्च कीजिएगा ना तो आपको मिल जाएगा. ठीक है, अभी हम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बोलता है कि क्या आप पास्ट को फाइंड करके उसको रिटर्न कर सकते हैं प्रेजेंट में? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल. फिर बोलते हैं कि डेविल का क्लेफ्ट फुट क्यों होता है? क्लेफ्ट फुट क्या होता है? जो पैर इस टाइप का सा होता है ना, इस टाइप से. क्लेफ्ट फुट क्यों होता है? उल्टा पैर. हमारा तो ऐसे होता है, सॉरी उल्टा बना दिए थे. ठीक है, उसके बाद टू हियर मरमेड सिंगिंग. क्या आप कभी मरमेड का गाना सुन सकते हो? लेकिन जो उड़ीसे क्या था, इलियड थे, इलियड ने वो सुना था सॉन्ग ग्रीक माइथोलॉजी में, आप सर्च कर सकते हो. तो ही हर्ड, वो एक सुनना आवाज दैट होली प्योर. तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो दीज आर द थिंग्स ही सेज टॉक अबाउट दैट कि ये बहुत ज्यादा बहुत ही वॉज वेरी स्केप्टिज्म और डिसइल्यूजमेंट एंड लव थीम है इसका. इट वॉज वेरी, मतलब अरे यार क्या मतलब, ये क्या बात हुआ, आप बताइए. बहुत बेकार बात लिटरली. मेरे को जॉन डन से ये वर्क मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा. सो ही सेज इन विच पोएम डन यूजेस इम्पॉसिबल इमेजरी. दीज आर द इमेजरीज, मेक इट राइट इन योर कॉपी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बोलता है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वाले में हाउ कैन ही टॉक्स अबाउट. ही सेड कि अगर आपको कोई लड़की मिल भी जाती है ना ब्यूटीफुल और फेथफुल, और आप बोलते हो कि जाके उसको लेटर लिख के जाकर दो, तो जब तक हम उसके पास लेटर लिख के जा रहे होंगे ना तब तक वो बहुत सारे मेल से इन्वॉल्व हो चुकी होगी और अपना इनफिडिलिटी दिखा चुकी होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार. उसके बाद 2 पोएम और बचा हुआ है. सो आई विल मेक अ पार्ट 2 ऑफ इट. इफ यू वांट पार्ट 2 of it, do let me know in the comment section. Please ma'am, make a part 2 and you will read all the poems which we have done. उसके बाद ही हम बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे. अगर आप नहीं पढ़ाई करोगे तो हम नहीं बनाने वाले हैं. हमको चाहिए कि आप मेरे साथ 6 months कंप्लीट जर्नी में रहे हैं. बस मेरे हार्ड वर्क करने से नहीं होगा, आपको भी हार्ड वर्क करना होगा. ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको कैरोलिन एज पढ़ना है जाके डिटेल में, फिर से उसके जॉन डन के पूरे लाइफ के बारे में पढ़ना है. मेटाफिजिकल कंसीट्स क्या होता है, मेटाफिजिकल के बारे में पढ़ना है. फ्ली के बारे में पढ़ना है आपको. द सन राइजिंग के बारे में पढ़ना है. गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार के बारे में पढ़ना है. और हम लोग आज यहीं तक कंप्लीट किए. सो यस, डू लेट मी नो और आपको कौन सा पोएम अच्छा लगा. ठीक है, जो आज हम लोग कंप्लीट किए हैं जितना पोएम्स, उस पोएम्स में डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच इज योर फेवरेट पोएम. ठीक है, पहला चीज आपको कमेंट करना फेवरेट पोएम. दूसरा चीज करना है कि पार्ट 2 आपको चाहिए तो यस डू कमेंट पार्ट 2. और तीसरा चीज कि आपको अपना होमवर्क करना है. अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, आई एम गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन और उसमें हम सबका टेस्ट लेने वाले हैं. और जो रिप्लाई नहीं करेगा उसको फिर हम नहीं पढ़ाने वाले. ठीक है, अगर हम इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं. आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हाँ जो सीरियस है उनके लिए तो आई एम ऑलवेज रेडी. तो ये 3 चीजें आपको कमेंट करना है. योर फेवरेट पोएम एंड रीजन देना है क्यों पसंद आया, वाई. ठीक है, पार्ट 2 एंड होमवर्क. And yes, that was a wrap to complete guide to Mr. John Donne and to his the most powerful poems. And also we dealt with the Caroline Age in a brief, quick tour of Caroline Age. So these poems are the PYQ magnets. Why I'm saying PYQ magnets? Because I have seen a lot of times the repetition have been done
in this UGC net from last from 2012 to 2024, these have been asked. Okay, so make sure you read the opening lines again and again, and if you get time, please go and read it by yourself, because for me I will be making like 5 hours long video and that won't be possible कि हम वो 5 घंटा का वीडियो अपलोड कर पाए. सो आई विल सजेस्ट यू प्लीज गो एंड रीड इट बाय योरसेल्फ. यू विल फील द एसेंस ऑफ इट, और आपको ओल्ड इंग्लिश का वर्ड्स भी बहुत सारा कुछ समझ में आएगा. हाउ सन वॉज राइटिंग, हाउ कैच वॉज राइटिंग, गो कैच द फॉलोइंग स्टार, सो वो सब आपको वर्ड भी समझ में आएगा. ठीक है. एंड ओपनिंग लाइन्स आर मस्ट, मैच द फॉलोइंग्स आर मस्ट, सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ PYQ. And also, yes, in day 7 we are going to talk about the metaphysical poetry, and we are going to deal with the George Herbert when we have, so stay tuned. And your homework is for today, make sure you go and read what metaphysical poetry is and how many important poets are there, so that when I teach you it will be your revision, and if I go wrong somewhere you will be able to tell me that yes ma'am, this is the thing where you are going wrong. So yes, for making me wrong also you have to study, so escaping study is nowhere. So yes, that was it, and don't forget to, and I will not say don't forget, if you found this video helpful, do not forget to like, share with your friend, those who are in preparation of UGC NET English, and those who find that it's very difficult to clear the NET examination without taking or buying the books. Make sure that you share this video with them, and also subscribe to English by Pooja Singh. Why? Because we are building JRF one day at a time. So yes, this is Pooja Singh signing off. See you in tomorrow's video. Till then, take care. Bye bye. Keep learning, keep shining.